قوم ایک، مذہب ایک، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی کو۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت ہمیں ملا ہے، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ میں رمضان مقدس ہوں، ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ میں اسلامی سال کا نواں مہینہ ہوں، میں رحمت کا سر چشمہ ہوں، میں برکت کا فیضان ہوں، میں ماہ نزول قرآن ہوں، میں ماہ رمضان ہوں، میں ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ میں اپنی قسمت پہ نازاں ہوں، کیونکہ میں لیلۃ القدر والا ہوں، میں رشد و ہدایت والا ہوں، میں ماہ رمضان ہوں، ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ قدردانوں کے لیے سراپا رحمت ہوں، ناقدروں کے لیے سراسر زحمت ہوں۔ میں تو جلد ہی جانے والا ہوں، میں ماہ رمضان ہوں، ایک بار پھر آ گیا ہوں۔ ناظرین آداب، جنوبی ہند کے مشہور اور تاریخی شہر چنئی میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس شہر کو دراویڑی حکمرانوں نے، برٹشوں اور نوابوں نے بنایا، سجایا، سنوارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی تاریخ، تہذیب اور روایتیں مشترکہ اور ملی جلی دکھائی دیتی ہیں۔ دیگر طبقات کے ساتھ یہاں کے مسلمان بھی تعلیم، تجارت اور سیاست کے میدان میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ مدراسی مسلمانوں کا ملی، ایمانی اور سماجی جذبہ قابل دید ہوتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو یہ شہر بھی پر نور نظر آتا ہے۔ سبھی مذاہب کے لوگ اس مبارک مہینے کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حکومت بھی کئی مساجد کو چاول کی تقسیم کرتی ہے تاکہ روزہ داروں کے لیے گنجی کا اہتمام کیا جا سکے۔ چلیے جانتے ہیں شہر چنئی اور تمل ناڈو کی مزید کیا خصوصیات ہیں اور رمضان کے دوران یہاں کا ماحول کس طرح دکھائی دیتا ہے۔ ماہ رمضان، 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 ماہ رمضان۔ سج گئے در و دیوار رمضان، السلام، سب خوش ہے اس قدر قدردان، السلام، سج گئے در و دیوار رمضان، السلام، سب خوش ہے اس قدر قدردان، السلام، بخشش کا سفینہ، بخشش کا سفینہ تیرا قرآن، السلام، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔ آبادی کے لحاظ سے ممبئی، کولکتہ اور دہلی کے بعد چنئی ملک کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ یہ شہر قدیم دراوڑی تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ وجے نگر راجاؤں کی حکومت کے دوران انگریزوں نے تجارت کے لیے اس علاقے کا کچھ حصہ حاصل کرتے ہوئے سن 1639 میں مدراس شہر کی بنیاد رکھی۔ انگریزوں کی آمد سے قبل دہلی کے سلطان علاء الدین خلجی کے دور میں یہ علاقہ بہمنی سلطنت کے زیر اقتدار بھی رہا۔ انگریزوں کے علاوہ آرکاٹ کے نوابوں نے چنئی کی تعمیر و ترقی میں اہم رول ادا کیا۔ نوابوں کے دور کی تاریخی مساجد آج بھی اس شہر کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ تمل ناڈو کے دینی اور مذہبی ماحول کی شہادتیں ہمیں قدیم کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ اس ماحول کو جلا بخشنے میں یہاں کے بزرگان دین کا بہت اہم رول رہا ہے۔ بالخصوص نواب والاجا، محمد علی والاجا کے دور کو ہم بجا طور پہ سنہری دور کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس دور میں
बल्कि यूँ कहिए कि आदिल शाही और कुतुब शाही दौर के सुकूत के बाद वहाँ के अजीम तरीन अहले दीन हजरात का काफ़िला शहर मद्रास की जानिब आया और यहीं सुकूनत पजीर हुआ। शहर चेन्नई में तकरीबन 10% मुसलमान आबाद हैं। चेन्नई और तमिलनाडु के दीगर शहरों में तमिल और उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की मिली जुली आबादी देखने को मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि तमिल और उर्दू ज़ुबान में भी गहरा ताल्लुक़ पाया जाता है। तमिल में उर्दू के कई अल्फाज का बखूबी इस्तेमाल होता है। क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमानों के दो ग्रुप होते हैं, एक तमिल बोल सकता है और एक उर्दू बोलने वाला है, तो फिर भी हम लोग मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के एक साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं, सहार करते हैं और एक साथ कहीं भी कोई फ़र्क हम लोगों में मालूम नहीं होता। इसलिए वैसे कोई फ़र्क नहीं है तमिल में और उर्दू में कि आज तक वो ही नहीं जानते कि ये ऐसे अल्फाज तमिल में इस्तेमाल होते हैं वो खालिस उर्दू अल्फाज हैं। जैसे अदालती अल्फाज हैं आप ले लीजिए, और दफ्तरी अल्फाज हैं जो ले लीजिए। सरकारी ऑफिसों में जितने भी आजकल अल्फाज आज भी राइज है, जैसे तमिल में तहसीलदार का इस्तेमाल होता है, हवालदार का इस्तेमाल होता है, तो ये तमाम चीज़ें उर्दू ही के अल्फाज हैं। और उसी तरह अगर आज भी वकालतनामा ही कहते हैं वो, वकील जी वकील ही कहते हैं। और अदालत के अंदर जितने भी आकर वायदा लेते हैं वो अल्फाज, इसमें कई अल्फाज ये लोग जाने अनजाने में यूज़ कर रहे हैं सर। जैसे मैं हाँ तमिल में, जैसे मैं अभी एग्रीकल्चर का स्कीम्स देख रहा हूँ, तो वहाँ पे जब भी जाता हूँ तो सब उर्दू के ही अल्फाज है, लेकिन तमिल वाला पूछो क्या है, वो बोलते तमिल में कई अल्फाज है। जैसे जमाबंदी बोलते हैं, महलवारी बोलते हैं, रैयत, ये सब उर्दू ही है। ठीक है, बनावट, ठीक, गुस्सा। तमिलनाडु के मुसलमानों ने अपनी मजहबी शनाख्त पर कायम रहते हुए तालीम और तिजारत के मैदान में नुमाया तरक्की हासिल की है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना आते ही ताजिर हों या मुलाजमत पेशा अफराद, तलबा हों या तालिबात, ख़वातीन हो या बच्चे, सभी की ईमानी कैफियत दुबाला नज़र आती है। इस वक्त हम मौजूद हैं चेन्नई की तारीखी मस्जिद वालाजा में। जुमे का दिन है, ईद सा मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपका खैर मकदम है, रमज़ान का महीना जारी है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जल्ल शान व तआला का ये बहुत बड़ी नेमत है, ये रमज़ान का महीना। इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला हमें तक़वे के लिए दिया है। 30 रोज़े रखने के, 29 या 30 रोज़े रखने के अल्लाह ताला दिए हैं। इस रोज़े रखने पर हमें क्या है, अल्लाह ताला तक़वा बनाना है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है। इस रमज़ान के महीने में हर कोई गुनाह से हिफाजत हो जाता है, शैतान से दूर हो जाता है, हमेशा अल्लाह की इबादत में लगते रहता है, तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाते हैं। अल्लाह का फज़ल व करम से बहुत अच्छा गुजर रहा है और मौसम भी अच्छा है और आधा से ज़्यादा तो गुजर चुका है, कुछ बाकी रह गया। इबादतें वगैरह सभी हो रही हैं, इबादत वगैरह बहुत अच्छी तरह की हो रही है। माशाअल्लाह से, मतलब इतना अच्छा मौसम है, इतना प्यारा मौसम है कि रमज़ान के महीने में खुदा अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत और बरकत अदा फरमाई है कि हर मुसलमान को समझ जाना चाहिए इस चीज़ को। ये 11 महीने काम की औरतें, एक महीना इबादत करना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से गुजर रहा है। कोई तो कैसे हैं शब रोज़ यहाँ के चेन्नई के? इंशाअल्लाह सब लोग हर साल से बसात है, हर तरफ देखे तो बोले भाई 11 रोज़े हो गए, अरे बहुत जल्दी हो गए, बड़ा अफसोस है। 18 रोज़े हो गए, बड़े बहुत अफसोस की बात है। और लंबे, मैं बोला हर रोज़ आपकी ईद है, हर रोज़ आपका रोज़ा है, अगर आपको ईमान सच्चा है तो ये अल्लाह ताला जिस रहमत की बारिश भी रहमत का ये पता क्या है, हर मुसलमान एक है, हम हर हिंदू मुसलमान सब भाई भाई की तरह चलते हैं, सब आते हैं मस्जिद में, उन्होंने इफ्तार सहर ला के देते, खिलाते हैं। अल्लाह का बहुत करम है, हम लोग इस चेन्नई के अंदर हम भाई भाई की तरह मिल के चलते हैं। माशाल्लाह बहुत खुश है, सब खुश है। अभी इबादत ज़्यादा करने के लिए अभी मौका मिल रहा है, इबादत कर रहा है। शाम को रात को जाके मस्जिद में तरावी पढ़ रहा है, इसमें बहुत सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत नज़दीक जाने के लिए ये महीने बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ रिचुअल का नहीं है, स्पिरिचुअल का लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट है। माह रमज़ान की कई पुरानी रिवायतें आज भी यहाँ जारी हैं। बिलखुसूस पूरे तमिलनाडु में रोज़ादारों के लिए गंजी का बड़े पैमाने पर एहतमाम होता है। इस पूरे महीने में मसाजिद, मोहल्लों और घरों में गंजी पकती है। नवाबों के ज़माने से ये गंजी का दौर चला आ रहा है, मगर गंजी दरअसल
ये मज़दूर उस वक्त पे पिया करते थे गंजी। तो हम लोग उस रिवायत आज तक चली आ रही है। आज तक हर इफ्तार के वक्त कोई चीज़ हो ना हो, गंजी का होना ज़रूरी है। गंजी की इतनी ज़रूरी बन गई है कि बगैर गंजी के यहाँ की हर मस्जिद में, शायद पूरे तमिलनाडु की हर मस्जिद में गंजी का इंतज़ाम मस्जिद की तरफ से या मोहल्ले वालों की तरफ से या कहीं कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जाता है। मस्जिद का नाम जो है ग्रीन मस्जिद है। इसको पहले जो है डब्बो लेन मस्जिद कहते थे। ये तो मिलिट्री वालों के लिए थी सब। अभी तो उसका नाम बदला गया, इसको अभी ग्रीन मस्जिद रखा गया है। और ये तो मद्रास चेन्नई 43 में रहता है, पल्लावरम में रहता है मस्जिद। हाँ, हुकूमत की तरफ से चावल मिल जाता है, बस दूसरा कुछ नहीं मिलता है। गंजी तो होना है, इफ्तार के लिए गंजी होना है, लिक्विड होना है। गर्मी हो जाता है ना, रोज़ाना से गर्मी होती है, उसलिए तो लिक्विड पहले लिक्विड खाना है। फिर कुछ हार्ड कुछ खा नहीं सकते ना, उसलिए तो गंजी बनाते हैं सब जगह। ज़रूरी गंजी है, गंजी का इफ्तियार के बिना गंजी नहीं है, ज़रूरी गंजी है। अल्लाह पूरे जगह गंजी देते हैं। हम लोग इधर पे भी जो भी हम लोग सुबह में ला के ले समोसा गिमोसा खुद लेके आते हैं। जो भी हम लोग लेके आके देते हैं, अल्लाह के नाम से शुक्रिया अदा करके हम लोग को सबको बांट देते हैं। रमज़ान तरबियत का महीना होता है और बड़ों के साथ बच्चे भी तरबियत पाते हुए नज़र आते हैं और हर तरफ इबादत के पुरनूर और पुरकैफ मनाजिर देखने को मिलते हैं। रमज़ान का मुकद्दस महीना हर एक के लिए खुशी, राहत, फरहत, मसरत लेकर आता है। बच्चों के लिए मानो जश्न ही जश्न होता है। इस वक्त कई एक बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो रोज़ादार हैं, मासूम रोज़ादार हैं। बताओ, रोज़े से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। इन्नल्लाह मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दी हज़रत बिलाल ने काबे से जब सदा, दी हज़रत बिलाल ने काबे से जब सदा, हैया अला सलाती हैया अलल फलाह, हैया अला सलाती हैया अलल फलाह। हुदूदे ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूदे ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुहल्ला हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुहल्ला हुजूर जानते हैं। माहे रमज़ान, 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 माहे रमज़ान। सज गए दरो दीवारे रमज़ान अस्सलाम, सब खुश है इस कदरदान अस्सलाम। सज गए दरो दीवारे रमज़ान अस्सलाम, सब खुश है इस कदरदान अस्सलाम। बख्शिश का सफीना, बख्शिश का सफीना तेरा कुरान अस्सलाम। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको शहर चेन्नई में इबादतों के रूह परवर मनाजिर दिखाएंगे और साथ ही उलमाए कराम के तासुरात पेश करेंगे। चलिए लेते हैं एक ब्रेक।
یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ نزول قرآن کا مہینہ جاری ہے۔ یہ مہینہ ہم سب کے لیے تربیت کا مہینہ ہے، ایک ایسی تربیت جو سال بھر ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اللہ اور بندوں کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ چلیے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا، بستی کے غریبوں کو دعوت میں بلا لینا، بستی کے غریبوں کو دعوت میں بلا لینا، بستی کے غریبوں کو دعوت میں بلا لینا، افطار کی دعوت کا۔ ماہ سیام کا آخری اشرہ جاری ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مقدس مہینے کے 22 روزے ہم سے رخصت ہو گئے اور بس گنتی کے روزے باقی رہ گئے ہیں۔ ایک جانب اس ماہ کی رخصتی کا ملال ہے تو دوسری جانب عید کی خوشیاں نظر آ رہی ہیں۔ عجیب کیفیت، عجب عالم کا احساس ہر بندے مومن کو ہو رہا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ رمضان کا تیسرا اشرہ عبادت کا نقطۂ عروج ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی چیز جب اختتام کو پہنچتا ہے تو اس میں کمزوری آتی ہے، لیکن رمضان کا آخری 10 دن جب آتا ہے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ اعتکاف جیسا عمل، لیلۃ القدر، اور علماء اسلام لکھتے ہیں کہ یہ 10 دن عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو قیام اللیل یعنی لیلۃ القدر، دوسرا اعتکاف جیسا عمل، اور پھر جہنم سے آزادی۔ جہنم سے آزادی سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر لے وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کے پانیوں سے نہیں بجھ سکتی، سمندر کا پانی بھی ڈال دیا جائے تو وہ نہیں بجھ سکتا، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اللہ کے خوف میں وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے بہہ جائے، یعنی آنسو نکل جائیں جس آنکھ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم حرام ہے۔ ویسے تو مکمل طریقے سے پورا مہینہ ہی عبادت کا مہینہ ہے، لیکن یہ تیسرا عشرہ خاص طور سے عبادت کا نقطۂ عروج ہے۔ بالکل ہماری عبادت انتہا کو پہنچ جانی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو ہمیں اس تیسرے عشرے میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی انتہائی عبادت کی غرض سے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی کرتے تھے۔ قدر کی رات بھی اسی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر کے قیام اللیل بھی اسی آخری عشرے کی 3 راتوں میں کرائی ہے۔ تو شریعت کے اعتبار سے ہمیں پوری کوشش اور طاقت کے ساتھ اس آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ حدیث میں بھی یہی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی عبادت میں اتنی کوشش کرتے تھے کہ جتنی اس کے علاوہ دوسرے عشروں میں نہیں کرتے تھے۔ اور مجموعی طور پر ہمیں چاہیے اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جہنم سے نجات اور رہائی حاصل کر لیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ اسلام نے جہاں عبادت بدنی پر زور دیا ہے، وہیں اس نے عبادت مالی پر بھی خاصی توجہ دی ہے۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ مالی عبادات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس سے غربت دور کی جا سکتی ہے، غریب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کے نفاذ سے معاشرتی خرابیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ چنئی کے علماء دین زکوٰۃ کی اہمیت کے سلسلے میں
कुछ यूं फरमाते हैं। जिस तरह रमज़ान का रोज़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, इसी तरह नमाज़ों को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, इसी तरीके से हज को फ़र्ज़ किया है, इसी तरीके से कुरान करीम में ज़कात मुस्तकिल कुरान करीम में अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, कुरान में नमाज जहाँ कायम करने का हुक्म दिया वहीं पर ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। लेकिन ज़कात सारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि मालदार मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। अब हर आदमी सोचता है कि मैं गरीब हूँ, तो गरीब कहने से गरीब नहीं होता, बल्कि कुरान जिसको मालदार कहता है, इस्लाम जिसको मालदार कहता है, इस्लामी निसाब जिसको मालदार कहता है, वो हकीकतन मालदार है। उसके लिए जो है 52.5 तोला अगर तुम्हारे पास चांदी है या 7.5 तोला सोना है तो आप मालदार के हुक्म है, ज़कात अदा करना पड़ेगा। ज़कात अदा नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उसकी बड़ी मजम्मत की है कि माल रहने के बाद, मालदार होने के बावजूद और साहिब निसाब होने के बावजूद वो ज़कात ना अदा करेंगे, अल्लाह के नज़दीक उसकी गिरफ्त होगी, उसकी पकड़ होगी और अल्लाह के पास उसको जवाबदेह होना होगा। मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना गोया आजमाइश की आजमाइश है और ट्रेनिंग की ट्रेनिंग। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस महीने से हासिल होने वाली ईमानी हरारत और तरबियत का असर बाकी तमाम महीनों तक कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शहर चेन्नई में सहरी और इफ्तार के पुरनूर मनाजिर हम पेश करने जा रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, लेते हैं एक ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इबादतों के साथ सहरी और इफ्तार की सरगर्मियाँ इस महीने को ख़ास बना देती हैं। मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले चेन्नई का माहौल कुछ मुख्तलिफ नज़र आता है। यहाँ इफ्तार के दस्तरखान पर कुछ हो या न हो, लेकिन गंजी ज़रूर होनी चाहिए। इफ्तार के बाद मुख्तलिफ जायकेदार पकवान रोज़ादारों के लिए दस्तयाब होते हैं। तो चलिए रुक करते हैं सहरी और इफ्तार की सरगर्मियों का। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। चेन्नई के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सहरी और इफ्तार की सरगर्मियों से शहर का मंजरनामा ही बदल जाता है। चेन्नई में शिद्दत की गर्मी होती है, इसी लिहाज से इफ्तार के मौके पर मुख्तलिफ अक़साम के फल, गंजी, दही और मशरूबात का इस्तेमाल कसरत के साथ किया जाता है। माह रमज़ान के दौरान चलिए जानते हैं ख़वातीन की क्या मसरूफियात रहती हैं। बताइए, सुबह की शुरुआत कैसे होती है? सुबह 2:30 बजे उठते हैं हम लोग और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर पकवान का देखते हैं, सहरी का चावल बनाते हैं, रोटी, दाल, गोश्त का फाल बनाते हैं। बाद में खा पी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, पढ़ के फिर कुरान की तिलावत करते हैं। उसके बाद में फिर बच्चों को तैयार करना है, स्कूल को भेजना रहता है, घर वालों को भी ऑफिस जाना पड़ता है,
इसकी मसरूफियात रहती है। उसके बाद में सब चले जाने के बाद फिर हम कुरान की तिलावत और इबादत में लग जाते हैं। और फिर दोपहर आती है और इफ्तार का वक्त भी करीब आता है। इफ्तार में क्या क्या चीज़ें बनती हैं? इफ्तार में हमारे यहाँ गंजी बनाते हैं हम, और बड़े बनाते हैं, और हरीरा भी बनती है, रूह अफ़ज़ा भी बनाते हैं हम, और फिर चिकन कटलेट, सैंडविचेस ऐसे वगैरह बनाते हैं। इन दिनों चेन्नई के बाज़ारों और मॉल्स में मुख्तलिफ़ अक़साम के खजूर दस्तयाब हैं। यहाँ लॉइन ब्रांड के तहत न सिर्फ खजूर बल्कि खजूर से बना हलवा, जैम, खजूर और शहद का मुरब्बा ग्राहकों के लिए दस्तयाब है। हर रोज़ादार खजूर की अहमियत से वाकिफ़ होता है। खजूर की दुनिया में लायन ब्रांड एक बड़ा नाम है। इस ब्रांड के तहत मुख्तलिफ़ अक़साम के खजूर फ़रोख्त होते हैं। न सिर्फ खजूर बल्कि हलवे भी बनाए जाते हैं और दीगर प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाते हैं। चेन्नई में इस ब्रांड को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अफ्तार में तो हम लोग बलाली खाते हैं, पपाया खाते हैं, बनाना खाते हैं, और मैंगो खाते हैं, चिक्कू खाते हैं, तरबूज है, सब इधर है। इस शहरी में तो दूध होता है, सेवई होता है, अब हर तरह चीज़ें होता है, केला है, इस तरह की चीज़ें हम लोग खाते हैं रमज़ान में, इफ्तारी में और शहरी में। ये मसाला दूध है, रोज़ा का टाइम है, ज़्यादा पीते हैं। कैसा बनाते हैं? मसाला दूध क्या डालते हैं मसाला? हाँ, शाम को आते हैं लोग, ज़्यादा पीते हैं। रियासत तमिलनाडु फ़िरका वाराना हम आहंगी और मजहबी रवादारी के लिए जानी जाती है। सभी मज़ाहिब के लोग एक दूसरे का एहतराम करते हुए नज़र आते हैं, और इसकी एक अच्छी मिसाल चेन्नई की तारीखी वालाजाही मस्जिद में रमज़ान के दौरान देखने को मिलती है। यहाँ बिरादरान वतन रोज़ादारों के लिए इफ्तार का एहतमाम करते हैं। तारीखी मस्जिद वालाजा में रमज़ान के दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की खूबसूरत बेहतरीन मिसाल देखने को मिलती है। हिंदू भाई यहाँ पूरे माह रोज़ादारों के लिए इफ्तार का एहतमाम करते हैं। फरमाइए सर कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और कब से ये सिलसिला जारी है? हमारा नाम अशोक उपचंदानी है। हम सूफी द ट्रस्ट महिलापुर से ऑलमोस्ट 35 साल से हर साल यहाँ पे खिदमत करते हैं। हमारे गुरुजी दादाजी ने हमारे को शुरू किया था। आज 35 साल से सब 30 दिन रोज़ों में हम आके अपने हाथ से यहाँ पे खिदमत करते हैं। हमारे 50-60 भाई हैं, हम लोग सब यहाँ आते हैं, और ये हम समझते हैं कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमारे को ये मौका दिया गया। जो यहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं, ये क्या मकसद है सर? ये मकसद हमारे गुरुजी ने एक ही बात सिखाई है, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। बिल्कुल भी आज के दौर में हम देखते हैं कि जहाँ पर बांटने की कोशिशें होती हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश होती है, आप जो है समाज को जोड़ने की कोशिश करें। बस ये मालिक की कृपा है। मैं तो 2-3 साल से इधर आ रहा हूँ, लेकिन ये लोग 35 साल से कर रहे हैं। दादाजी जो कर रहे हैं, दादाजी का जो है वही ऐसे कंटिन्यूस चल रहा है। इफ्तार में क्या क्या देते हैं आप यहाँ? इफ्तार में कभी क्या की रहता है, कभी कंजी रहता है, कभी बिस्मिल्लाह रहता है, कभी बिरयानी रहता है, फिर पैकेट रहता है, वाटर देते हैं, मिल्क रोस्ट रहता है। सहरी और इफ्तार के मौके पर मसाजिद और घरों का नज़ारा काबिल दीद होता है। दस्तरख्वान पर मुख्तलिफ़ अक़साम के फल, जायक़ेदार चटपटी अशिया और रूह अफ़ज़ा से बने मशरूबात का भी इस्तेमाल होता है। तकदीर के पाबंद नबादात व जमादात, तकदीर के पाबंद नबादात व जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। एक मंज़र यहाँ पर आप देख सकते हैं। इफ्तार का वक्त करीब है, कई तरह के अक़साम के डिशेस यहाँ पर रखे हुए हैं। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता यहाँ कोई भी एक घूंट पानी तक नहीं पीता। अल्लाह ताला सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और इफ्तार के दस्तरखान पर दुआएं मांगने को बेहद कबूल करते हैं, बेहद पसंद फरमाते हैं। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की
شہر چنئی میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس گرمی کی تپش کو کم کرنے کے لیے طرح طرح کے مشروبات کا استعمال ہوتا ہے. ان مشروبات میں روح افزا کا استعمال ضروری سمجھا جاتا ہے. کیا روح افزا کا استعمال روزانہ ہوتا ہے؟ ہاں، روزانہ ہم روح افزا کا استعمال کرتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ یہ پانی سے بھی بناتے ہیں اور دودھ سے بھی بناتے ہیں اسے. اب یہاں پر آپ روح افزا بنا رہی ہیں، وہ کیسے بنا رہی ہیں؟ پہلے روح افزا 3 چمچ ڈالتی ہوں میں. اس کے بعد یہ سبزہ بھگا ہوا پانی ہے. یہ سبزہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، تو اسے ڈال کے روح افزا صحت کے لیے بہت اچھا ہے. یہ جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ہے. اچھا. پیٹ کے لیے بھی ہاں ٹھیک ہے. سائڈ میں ادھر اوکے تھینک یو. کیسا بنا؟ اچھا. شکر. روزوں کے لیے، تراویحوں کے لیے ماشاء اللہ بہت خوبصورت منظر ہے. ہر گلی میں شور زور چل رہا ہے، پرچیز وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت، یہ جو ماہ مہینہ میں جو عبادت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہر مسلمان کی. ہم بنگلہ دیش سے آئے ہیں اور یہاں پر رمضان ٹھیک طرح ہم مینٹین کر سکتے ہیں. یہاں پر بہت سارے ہوٹلس ہیں، مسلم ہوٹلس ہیں. پھر یہ سب ہوٹلس سحری کے ٹائم پہ بھی کھلا رہتا ہے اور افطاری بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ. یہاں ہم ڈاکٹر دکھانے آئے ہیں، لیکن جگہ بہت اچھا ہے. اچھے طرح سے سب کر سکتا ہے، عبادت بھی کر سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. ادھر سب اچھی ہوتا ہے. چنئی کے ٹرپلیکین، ہائی روڈ، پائک رافٹ روڈ اور چند دیگر علاقوں میں دن رات روزہ داروں کی گہما گہمی نظر آ رہی ہے. بہرحال چنئی میں مبارک مہینہ عبادتوں کے ساتھ مختلف مذاہب کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں اور ہم موجود ہیں شہر چنئی میں. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد چنئی میں بازاروں کی رونق اور عید کی خریداری کا جائزہ پیش کرتے ہیں. چلیے لیتے ہیں یہاں پر ایک بریک. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. عید قریب ہے. عید کی شاپنگ اور عید کی خریداری کے لیے چنئی کے بازار سجے ہوئے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں ٹی نگر علاقے میں. ٹی نگر، انا نگر، ٹرپلیکن ہائی روڈ اور چنئی کے دیگر بازاروں میں عید کی خریداری زوروں پر جاری ہے. چلیے دیکھتے ہیں اس مرتبہ چنئی کے بازاروں میں کیا کچھ خاص ہے. برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا. یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، برکتوں کا مہینہ ہے. عید کے کاروبار کے پیش نظر چنئی کے کئی بازار دلہن کی طرح سجے ہیں. والاجاہی مسجد کے سامنے موجود ٹرپلیکین ہائی روڈ پر دینی کتابیں، جانماز، ٹوپیاں، عطریات اور قرآنی آیات کے تغرے کی خصوصی دکانیں موجود ہیں. عطریات کی اگر بات کی جائے تو چنئی شہر میں عطر اور پرفیومز تیار کرنے والی ملک کی ایک بڑی کمپنی موجود ہے. چنئی کے تمبارم علاقے میں ایس ایف پی برانڈ کے تحت مختلف اقسام کے عطر اور پرفیومز تیار ہوتے ہیں. روزانہ 10 ٹن عطر اور پرفیوم آئل اس فیکٹری میں بنتا ہے.
माह रमज़ान में इतरियात का भरपूर इस्तेमाल होता है। इतरियात की एक बड़ी कंपनी शहर चेन्नई में मौजूद है। हम कह सकते हैं कि चेन्नई से पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को खुशबू फैल रही है। यहाँ पर SFP जो इतरियात तैयार करती है, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह इतर तैयार होता है? साहब, हमको बहुत बड़ा खुशी है आज EDB का टीम हमारे यहाँ आए रमज़ान के महीने में, और ये इतरियात जो तैयार करते हैं, अतर तैयार करते हैं, उसके अंदर हमारे पास हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल है, जैसे सैंडलवुड है, अगरवुड है, सेफ्रॉन है, पचोली, लवेंडर, ऐसे प्योर 100% नेचुरल रॉ मटेरियल हमारे यहाँ हम लोग पूरी दुनिया से लेते हैं। उसका क्वालिटी कंट्रोल होता है, और फिर उसका जो प्रोसेस है ब्लेंडिंग का, हमने ऑटोमाइजेशन किया है, और वो हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल से हम लोग एक इस आर्ट ऑफ मिक्सिंग, ये ऊपर वाले का देन है कि हमारे पास सबसे अच्छे लोग हैं, और ये प्रोडक्ट स्किन फ्रेंडली है, उसके अंदर कोई एलर्जन नहीं है, एकदम सेफ प्रोडक्ट है, और ये नॉन अल्कोहलिक है। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपके बाज़ार में, कौन से अहम प्रोडक्ट्स को लोग पसंद करते हैं? हमारा सबसे 20 साल से जो प्रोडक्ट बाज़ार के अंदर पूरी दुनिया में मशहूर है वो हसन अत्तर फूल है, तैयबा, मलिकी, सलाम, और हमारा जास्मिन की वजह से हम लोग अभी नया जो ब्रांड लॉन्च किया है जास परफ्यूम के नाम में, जास रोलोन के नाम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। ओके, रोज़ाना कितने लीटर अत्तर आप तैयार करते हैं, और कहाँ कहाँ तक ये अत्तर जो है इसका सप्लाई होता है? हमारे पास रोज़ का 10 टन ऑयल तैयार होता है। रोज़ ये प्लांट के अंदर, मद्रास के अंदर 1 लाख बाटली तैयार होता है, और ऐसा ही हमारे प्लांट गुजरात के अंदर है, उधर भी 1 लाख बॉटल तैयार होता है, और हमारे पास पूरे 500 आदमी काम करते हैं। हमारे को बड़ी खुशी है कि हम लोग हैप्पीनेस बेचते हैं। मुल्क की शुमाली रियासतों में तैयार होने वाले मोतियों से जड़े मलबूसात और दीगर अशिया चेन्नई वालों की भी पसंद बने हुए हैं। हालांकि तमिल बाशिंदों को सादगी पसंद समझा जाता है, लेकिन नई नस्ल नए फैशन के मुताबिक ही ईद और त्यौहार मनाती हुई दिखाई देती है। हम लोग चेन्नई में रहते हैं, यहीं से आए। तो कैसे ईद की खरीदारी? अच्छी चल रही है ईद की खरीदारी, अच्छे डिज़ाइन है यहाँ पर नूरी ड्रेसेस में, तो वही हम लोग लेने आए हुए हैं। कौन से डिज़ाइन हैं? अच्छे स्टोन वर्क्स है, अभी न्यू मॉडल है, पटियाला, प्लाजो और डिज़ाइन है सब, इसके लिए हम लोग लेने आए भी। हम लोग ईद की खरीदारी करने आए, रमज़ान आ रहे हैं, हम लोग बहुत खुशी से खरीदारी के लिए, कपड़े धोने के लिए। कौन सा डिज़ाइन देख रहे हैं? डिज़ाइन प्लाजा, ऐसा बेंगलुरु में आता है ना, बाजरा मस्तानी, ऐसा डिज़ाइन देख रहे हैं। अभी बहुत खुशी है, हम लोग रमज़ान इबादत भी करना है, फिर खरीदारी भी करना है बच्चों के लिए। क्या कहेंगे आप, कौन से डिज़ाइन आप देख रहे हैं? बाजरा मस्तानी, प्लाजो, वैसा डिज़ाइन अच्छा है। रेट्स वगैरह कैसे हैं? ईद की खुशियां बटोरने का वक्त करीब है, लेकिन इन खुशियों के साथ इस बात का भी एहसास रहे कि समाज के यतीम, गरीब और मोहताज फ़र्द भी अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियां मनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बाकी के बच्चे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए, और ईद की खुशियां हर मोमिन मुसलमान को नसीब फरमाए। आमीन। दोस्तों, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड, जो तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के पसंद आया होगा। मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन शंकर और शिव कुमार, रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।